Hello, Dr. Apna Suni. How are you? I'm good. I think Dr. Satyajit है. हेलो. Hello. Good evening, Dr. Satyajit. वेरी गुड इवनिंग मैम. Good मेरी evening, sir. आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है. पहले थोड़ा अब सा आवाज. नेटवर्क इश्यू था, तो आप दिख नहीं हाँ, रहे थे पता नहीं हमें. क्या प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू तो नहीं होगा, पता नहीं क्या इशू था. हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग. Good डॉक्टर evening, sir. साहब, मैं डॉक्टर अर्चना सोनी एंड शी इज डॉक्टर सरनजीत एंड डॉक्टर समीक्षा. Hello, sir. Yeah. नमस्ते मैम. हेलो मैम. I am unable to see you, sir. मेरा वीडियो तो ऑन है. No, no. मैं You there? I can see you from another account, but I can't see in my phone. अच्छा, क्यों? ये I'm बहुत able to बहुत हो see जाता है. the other account. अच्छा Yeah. अच्छा अच्छा. चलिए स्टार्ट करते हैं. Yeah. Welcome Dr. Satyajit Mitra, consultant homeopath, nutrition, diet planning and weight loss consultant. He is BHMS from Sri Janta Homeopathic Medical College, Akola, Maharashtra, and MD from GD Paul Foundation, Yerela Medical Trust, Homeopathic Medical College. As a physician practicing homeopathy since almost 5 years in Akola, Maharashtra, also available for teleconsultations pan India and across the globe. Reasonable fees, result-oriented practical approach and unbiased views about all schools and approaches is the ideology of his practice. As a speaker, he has delivered national level webinars on the following topics: use of polycrest remedies versus rare remedies, Arnica in depth, study of homeopathic materia medica, Facebook session with Bhargava Phytolab, scope of homeopathy in mental health with the Homeopathic Academy, and as a guest speaker, guest lecturer, he has been invited by his PV college, has been invited by homeopathy study firms for in-person and online sessions. A video series on how to study materia medica on homeopathy 360 YouTube channel is very well appreciated. मैंने भी उसे देखा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा था वो. Yeah. थैंक यू सो मच मैम. And his literary contributions, author of 2 books on homeopathy, Widening Horizons and Compendious Study of Cinchona Officinalis and Notes on Allen Scale. Almost a dozen articles and writings published in National Journal of Homeopathy, Homeopathic Heritage, New Life Era, etc. Co-authored an article COVID-19 at a glance and the role of homeopathy in past epidemics and ongoing COVID-19 pandemic. It was published in Indian Journal of Applied Research. He has been awarded as Man Icon of the Year 2021 in homeopathy, healthcare and education sector and won various quiz contests on homeopathy. He has been featured in interviews on homeopathy and health related topics, has been interviewed on Radio Orange 91.1 regarding his book on homeopathy. Well done. We welcome you. थैंक यू सो मच Welcome. मैम. थैंक यू सो मच मैम. मैंने आपको रिज्यूम में थोड़ा पुराना भेज दिया था. वो 4 साल पुराना रिज्यूम है, तो उसमें एक्सपीरियंस के 4 साल ऐड हो गए. मैंने उसको और बाकी थोड़ा सा बाकी किया. बाकी भी कुछ अचीवमेंट जुड़ गए, लेकिन वो तो मेरी गलती है. मैंने आपको 4 साल नहीं, ऐसा कुछ नहीं. थैंक यू हमने उसको सो मच थोड़ा फॉर बहुत दी. किया चेंज, बट ज्यादा नहीं किया. वो पता नहीं, उस दिन शायद कुछ बहुत बिजी डे था. होता है. थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच. सर, जैसे आज का आपका टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर्स, तो आई वुड लाइक टू नो कि स्लीप डिसऑर्डर्स होता क्या है, और ये हम लोग जो ओकेजनली हमारे को स्लीपलेसनेस हो जाती है, इससे कुछ डिफर है ये? हाँ मैम, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है. एक्चुअली ये टॉपिक लेने का रीजन, ये टॉपिक लेने का मैम किस चीज का डिस्टर्बेंस आ रहा है? हाँ, अब ठीक हुआ है. हाँ, अब ठीक हुआ है मैम. इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेने का मोटिव ही था कि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मतलब स्लीप डिसऑर्डर्स. लेकिन जितना ब्रॉड है उतना ही हमारा स्कोप और हमारा रोल, होम्योपैथी का स्कोप और रोल है इन तमाम अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर्स में. ये बात हाईलाइट करनी थी. और दूसरी बात,
कि स्लीप एक फिजियोलॉजिकल नीड है, जैसे पानी और भूख की तरह ही। हम माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं, माइंडफुल एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन माइंडफुल स्लीप की बात नहीं करते। और हम सबकी लाइफस्टाइल इधर बाय चॉइस और बाय कंपल्सन ऐसी हो चुकी है कि स्लीप थोड़ा सा निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है। तो ये दो मोटिव्स थे ये पूरे इसको लेने के लिए। और आपने जैसे कहा ना कि इंसोम्निया तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर्स अगर देखेंगे तो पूरा क्लासिफिकेशन अगर मैं पढ़ूं तो इंसोम्निया पहला, उसमें इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, सिरकैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर्स, उसमें से फिर लेट सोना, कम नींद आना, वन ऑफ द सब टाइप इज जेट लैग, शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, फिर पैरासोम्नियाज है जिसमें फिर होम्योपैथी का स्कोप है, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, स्लीप रिलेटेड ग्रोनिंग वगैरह, फिर स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स जिसमें भी होम्योपैथी का स्कोप है, जैसे एपनिया हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हुआ, सेंट्रल स्लीप एपनिया हुआ, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नार्कोलेप्सी और कैटाप्लेक्सी। तो ये पूरा लिस्ट है स्लीप डिसऑर्डर्स का, और इसमें से शायद कोई चीज ऐसी होगी जिसमें हमारा स्कोप या रोल नहीं है। तो ये भी मोटिव था उसको चूज करने का। ओके सर। सर जैसे आपने मेरे को बताया, जैसे हमें तो मालूम है कि आईसीडी और दूसरे में इसको डिफाइन किया है पर्टिकुलरली, बट हम लोग जैसे डिसऑर्डर्स लेते हैं तो हमारे को भी उसी तरह से डेफिनेटिव लेना चाहिए, या एज सच एज अ होम्योपैथिक पर्सन तो हमारे को वैसे लेना चाहिए? सॉरी, मैं आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही है? डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही है? या डायग्नोस्टिक, यस। हाँ मैम, ये वही से फिर वो फंडामेंटल सवाल आ जाता है ना कि होम्योपैथ्स के लिए डायग्नोसिस जरूरी है क्या या नहीं जरूरी है। एक चीज तो होती है ना कि भाई ठीक है, आईसीडी हुआ या साइकेट्रिक केसेस में फिर डीएसएम हुआ, वो किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं वो, फिर हमारा ऑर्गेनोन का क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हुआ वो। लेकिन एक बात है ना कि जब डायग्नोसिस हमारे पास होता है तो एटलीस्ट पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस क्या है हम ये हमें पता चलता है। फिर ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो एक हमेशा रिफ्ट रहेगा होम्योपैथ्स में कि ट्रीट द पर्सन और ट्रीट द डिजीज। अगर हम कहेंगे ना कि लेकिन डायग्नोसिस हमारे पास है तो हम ऐसे ग्रुप ऑफ रेमेडीज में आएंगे कि जिसकी पैथोलॉजी डिजीज पैथोलॉजी से मैच करती है। तो उतना तो एक सिमिलिट्यूड बढ़ जाता है ना उस चीज का। या तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या रहेंगे इन सबके? जी जी मैम। कॉमन कॉजेज ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर्स क्या कॉमन हैबिट कॉजेज ऑफ, है, या मतलब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स बेसिकली? अगर हम इंसोम्निया से लेके अगर बाकी पैरासोम्नियास की बात भी करें, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, एन्यूरेसिस, तो कुछ कॉमन कॉजेज है कि जिसमें पुअर स्लीप हाइजीन, जिसमें पुअर लाइफस्टाइल प्लस पुअर स्लीपिंग कंडीशंस ऑफ द रूम ये हुआ, फिर स्ट्रेस हुआ, डे टाइम नैप्स हुआ, कुछ डिजीजेस है, साइकेट्रिक डिजीजेस है या कुछ फिजिकल डिजीजेस जहाँ पेन बहुत ज्यादा है या फिजिकल डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस है जहाँ जीईआरडी है, हियाटस हर्निया है जहाँ आपके फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशंस है, वो हाइपरटेंशन के मेडिकेशंस हो, अस्थमा के मेडिकेशंस हो। ये अगर ब्रॉडली सबकी बात करूँ तो इंसोम्निया से लेके पैरासोम्नियाज तक, स्ट्रेस, हेरिडेटरी, पुअर स्लीप हाइजीन, पुअर लाइफस्टाइल, ये अगर ब्रॉड बात करें तो। फिर बाद में अगर इंडिविजुअल जाएंगे तो और हमें उसके रीजंस और उसके कॉजेस मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए ये है कि स्लीप प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली जो है स्पेशली क्या किस टाइप के पाए जाते हैं जो सिटीज में स्पेशली स्लीप प्रॉब्लम जो है वो किस टाइप के कॉमनली पाए जाते हैं कि किस टाइप का रहेगा, सिटी किस टाइप के केसेस रहेंगे? किस इंसोम्निया सबसे ज्यादा कॉमन है। इंसोम्निया, ओके। इंसोम्निया सबसे ज्यादा कॉमन है, हाइपरसोम्निया भी कॉमन है क्योंकि कुछ ओके। डिजीजेस है जैसे थायराइड
थायराइड सबसे कॉमन डिजीज है, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटिस, और फिर रही सिरकैडियन रिदम डिसऑर्डर्स जैसे जेट लैग, ट्रैवलिंग बढ़ गया है लोगों का, वो भी कॉमन है। शिफ्ट्स, लोगों के नाइट शिफ्ट्स बदलते रहते हैं, नाइट शिफ्ट्स, डे शिफ्ट्स, आफ्टरनून शिफ्ट्स, वो बदलते रहते हैं, उसकी वजह से भी जो इंसोम्निया होता है, स्लीप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होती है, दैट इज ऑल्सो कॉमन। आपका नाम के बच्चों में अगर देखा जाए तो नाइट टेरर, नाइटमेयर, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, ये कॉमन है, ये भी स्लीप डिसऑर्डर्स में ही आते हैं। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी उतना अनकॉमन नहीं है, क्योंकि नेजल पॉलिप्स, डीएनएस, एडेनॉइड्स, टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा कॉमन है। प्रीमैच्योर बच्चों में सेंट्रल स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है, क्योंकि वो ब्रेन, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर का मैच्योरिटी नहीं हुआ होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर डेवलप नहीं हुआ होता है। और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि उसके बाकी के रीजंस तो भले ही अनकॉमन है, लेकिन एंजाइटी, अगर आप दिन में बहुत ज्यादा सो रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि रात में नींद नहीं आएगी, फिर पैर एक कंपल्सिव नीड फील होगा पैर हिलाने का। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमनेस्ट कॉज है, बाकी के कॉजेज भले ही रेयर होंगे, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है। इंसोम्निया सबसे ज्यादा कॉमन है, बाकी भी कुछ अनकॉमन नहीं है। मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी तो है ही है हमारे इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, उसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रहेंगे कि ज्यादा ये देखने को मिल रही है आजकल प्रॉब्लम? ये मैम, एक तो जैसे कहा ना कि स्लीप हाइजीन, एक तो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा खराब है, लाइफस्टाइल बड़ा खराब है। स्ट्रेस के अलावा एनवायरनमेंट, जो कहते हैं ना कि रूम में कई बार अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर डार्क क्वाइट रूम नहीं है, वो चीज है। और ब्लू लाइट और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि दिन भर हम काम करते हैं, तो सोशल मीडिया तो मतलब बहुत जरूरी है चलाना। एक बार खाना नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया के बिना कैसे रहेंगे? सोशल मीडिया मतलब के कहीं वो ना तो कहीं एक, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल है अपनी नींद को प्रॉपर ना लेने के लिए, लोग जो हाँ, इस तरह से स्ट्रेस एंजाइटी तो वो है ही तो है मैं फैक्टर। वो तो मैंने आउट ऑफ सरकाज़म और आउट ऑफ सटायर बोला था कि नहीं, सच या बोला कुछ था सर कंपल्शन। आपने। वो मतलब जब कॉम्पिटिशन हो तक गया। इंस्टाग्राम एक, कल मेन जब तक, कॉज ही यही है। हाँ जी, वो जो ब्लू लाइट होता है ना, सारे मतलब लैपटॉप का, टैबलेट का, मोबाइल का, टीवी का, किसी इलेक्ट्रॉनिक, हमारा जो नेचर में जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारा जो स्लीप वेक साइकिल के लिए जो दो हार्मोन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है, मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल, बाकी भी हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, स्पेशली मेंसेस में और मेनोपॉज के दरमियान बाकी भी हार्मोन्स है, लेकिन ये दो हार्मोन्स बेसिकली। तो नेचर का इवोल्यूशन ऐसा है कि जब डे लाइट होता है तो मेलाटोनिन अच्छा डोर्मेंट होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है वो सिक्रीट होने लगता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवनिंग में फिर एनर्जी कम होना, फिर धीरे धीरे नेचुरली नींद आना, फिर जैसे सवेरा होता है तो कॉर्टिसोल मतलब रिलीज होता है, तो फिर वैसे स्ट्रेस हार्मोन वेक, ये जो नेचुरल साइकिल है वो हमने बिगाड़ दिया है, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी लाइट्स। अभी हम और कुछ कुछ, इंस्टाग्राम की, हाँ जी बोलिए। जी जी नहीं नहीं, आप जी मैम। कंप्लीट कीजिए, मैं पूछती हूँ आपसे। और कभी कभी तो मैम ऐसा नहीं है कि इट इज आवर चॉइस, अब कभी कंपल्शन भी हो गया। अब देखिए आप, जो स्टूडेंट्स है, मतलब स्कूल के बच्चे हो या 11th-12th के बच्चे हो, या मतलब कोई भी डिग्री कर रहे हैं, दिन भर उनका कॉलेज और उनके प्राइवेट कोचिंग क्लासेस चलते हैं, तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? या तो रात तक जगेंगे या सवेरे जल्दी उठेंगे, और फिर वापस से जब आप काम करोगे तो ऑब्वियसली लाइट को एक्सपोज जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली जब आप कुछ कह रहे थे पेशेंट मैम? हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कि रात को सोने से एटलीस्ट 1 आवर पहले आप अपने स्मार्टफोन्स या टीवी सब कुछ बंद कर दीजिए, बिकॉज ये आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो उनका रिप्लाई आता है कि डॉक्टर साहब हम तो उठाते ही इसीलिए हैं फोन कि नींद आ जाएगी, ये क्या करें, लेटे हैं, साइड्स चेंज कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी राइट इसको आप डिटेल में बताओ कि उनको समझ में आए, जैसे थोड़ा सा आपने बताया भी है, लाइट्स जी वाला जो है डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, इससे और थोड़ा ज्यादा। जी। एक तो जो नेचुरल हमारा एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि नेचुरल डे लाइट में हम एक्टिव रहे, जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे हमारा सिरकैडियन रिदम, हमारा
बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो उस तरीके से। और दूसरा जो है मोबाइल, जो हमें लगता है कि नींद नहीं आ रही इसलिए उठा रहे, तो ब्लू लाइट की वजह से नींद और डिस्टर्ब हो जाती है और नींद उड़ जाती है। और जो आपने कहा ना कि 1 घंटे पहले मोबाइल फोन या सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्विच ऑफ कर दिए, तो जो 10-3-2-1-0 रूल ऑफ फॉलिंग अस्लीप जो है कि सोने के 10 घंटे पहले कोई भी स्टिमुलेंट का सेवन ना करे, कॉफी वगैरह। सोने के 3 घंटे पहले अल्कोहल का सेवन ना करे, अल्कोहल हैवी मील का सेवन ना करे। सोने के 2 घंटे पहले कोई भी हैवी मेंटल एक्सर्शन ना करे। कोई बहुत किसी डीप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिजिक्स के किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स की कोई डिफिकल्ट इक्वेशन को समझ रहे हैं, होम्योपैथी के किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ ये रहे सबसे बड़ा कॉज है, सपने भी उसी के आते हैं। हैं। सपने भी उसी के आते हैं। मतलब क्यों? मतलब किसी ने कहा 3 माह से, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 10। ये क्यों है? तो कोई भी मेंटल एक्सर्शन 2 घंटे के पहले ना करे। और जब जैसे आपने कहा कि 1 घंटे सोने के 1 घंटे पहले सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सारा स्विच ऑफ कर दे। ठीक है, बिल्कुल सही। और अच्छा, एक जो अभी जैसे हम बात कर, हाँ जी, बोलिए बोलिए। और एक जो बात जो स्लीप हाइजीन हमेशा से आती है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल प्लस कंफर्टेबल स्लीपिंग रूम, कि आपके कपड़े कंफर्टेबल हो। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत थक के आए और जस्ट बस थोड़ा सा खाना खा लिया वैसे ही सो गए। तो बहुत कंफर्टेबल कपड़ों में, बहुत कंफर्टेबल बेड में, बहुत कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर में, डार्क क्वाइट प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में, रूम कंडीशंस प्लस दिन भर का लाइफस्टाइल ऐसा हो कि फिजिकल एक्सर्शन भी हो, डे लाइट एक्सपोजर भी हो। ये सारी चीजें, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल प्लस गुड स्लीपिंग एनवायरनमेंट, जिसे हम स्लीप हाइजीन कहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अभी जैसे हमने अल्कोहल और कैफीन की भी बात करी कि वो एटलीस्ट 3 आवर्स पहले कंज्यूम नहीं होना चाहिए। तो आप व्यूअर्स को ये जरूर बताइए कि उसके नुकसान क्या क्या है स्लीप को लेकर। जनरली तो पता स्लीप को लेकर, ही है। because they are stimulants, they activate your brain in the primary action, they at least stimulate। बाद में सेकेंडरी एक्शन का तो भले ही अलग है, क्योंकि हमें ब्रेन को उस स्लीपिंग मोड में ले जाना है ना। तो कोई भी चीज जो है वो ब्लू लाइट भी वही काम करती है। जो सुलाने के बजाय जो अवेक कर रहे हैं, जो जगा रहे हैं, वो चीजों से दूर रहना है। बट पेशेंट ये भी आके कहते हैं ना, पी लेता हूँ तो नींद अच्छी आ जाती है। हाँ, अब वो एक अलग ही बात है कि वो डिपेंडेंसी तो है ही, लेकिन इंसोमेनिया के पेशेंट को थोड़ा सा समझाना कई बार ना मुश्किल हो जाता है कि राइट आप पी रहे हो, आप वो नशे में सो रहे हो, आप नींद की वजह से नहीं सो रहे हो। एग्जैक्टली, सो ट्रू मैम, सो वेल सेड। लाख बात की एक बात। तो मैं इसके बारे में चाहूंगी कि आप बताओ व्यूअर्स को कि हाँ, कि सिर्फ आपको लगता है नेक्स्ट डे जो होता है वो तो अलग ही है कुछ। राइट। देखिए, कोई एग्जैक्टली आप मतलब नशे में सो रहे हो, वो नशा किसी भी चीज का हो, चाहे आप अपने स्ट्रेस से भाग रहे हो, या आपकी बॉडी उससे मांग रही है, या फिर आपका एक साइकोलॉजिकल ये नोशन बन गया है कि उसके सिवाय तो मुझे नींद नहीं आएगी। You need to get rid of that. You need to talk to your physician. You need to talk to your therapist. और ठीक है, मैं तो वैसे ही अब एक ऐसा पर्सन हूँ जो टोटली रिफ्रेन करता है किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेशन से। जो अल्कोहल जो मैंने कंज्यूम किया है वो होम्योपैथी मेडिसिन का ही है, लेकिन फिर से वो बड़ा एक लंबा टॉपिक हो जाता है कि बिल्कुल है, कंज्यूम लंबा टॉपिक करना है। चाहिए। नहीं, सिर्फ उसका ये कि पेशेंट्स को क्लियर हो कि हाँ, कि अल्कोहल को भी आपको कम करना चाहिए अगर आप एक अच्छी और रिफ्रेशिंग स्लीप चाहते हैं। रिफ्रेशिंग स्लीप चाहते हैं तो जैसे मैम आपने कहा ना, जो लाख बातों की एक बात की, आप अगर आप सो रहे हो तो नशे में सो रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल स्लीप इंड्यूस कर रही है, वो एक बात। और दूसरी एक बात की बहुत सा ये मिथ प्रोपगेट होता है इवन मेडिकल प्रोफेशन में भी कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज नॉट एट ऑल बैड, इट इज इन फैक्ट गुड। सम फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल कंटेन ऑल द एसेंशियल मिनरल्स। ये जो बहुत सारे मिथ है ना, मिथ कह लीजिए या प्रोपेगेंडा कह लीजिए, ये लिकर कंपनीज ने प्रोपेगेट किए हुए मिथ है, जो बहुत ही अनबायस्ड स्टडीज और बहुत अनबायस्ड रिसर्चेस है वो यही कहते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज रिकमेंडेड।
वही बात है, अभी हम पर भी हमारी मेडिसिन पर जो रिसर्च हुआ था कि इनका जो अल्कोहल है वो पेशेंट को कितना खराब करेगा। वो हमारे 1-2 ड्रॉप नजर आते हैं। आप जो अगर पेशेंट को बोल रहे हो कि 30 ml और 60 ml कुछ ऐसा नुकसान नहीं करेगा, वो और उसमें तो हमारा तो फर्क ही बहुत है। हम लोग ड्रॉप्स तक रहते हैं। वो बिल्कुल आपने सही बात बोली है। और एक सर, बात ना मैम, कभी कभी समझान यस जी, सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। Last बात। ये मैंने एक बार पेशेंट को समझाने की बात, एक बार कुछ एग्जांपल देके, मुझे लगा थोड़ा पढ़ा लिखा पेशेंट है तो समझेगा। मैंने कहा अल्कोहल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब देखिए बहुत सारे फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में भी वो डीजेनरेट होके अल्कोहल ही हो जाता है, अगर केमिस्ट्री की बात हम्म, करें तो। हम्म, तो इस अल्कोहल से इतना परहेज क्यों, और सेल्फ चोजन अल्कोहल से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है, वो जो वही बात है जो बहुत सिंप्लीफाई करके समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हम वही एक बार फोन पे बात कर रहे थे हम लोग कि क्यों, मतलब जैसे हाँ जैसे बिल्कुल मुझे याद है। डॉक्टर साहब बीमारी तो मुझे 3-4 है, आपने मुझे एक ही दवाई दी। हाँ या बिल्कुल फिर बिल्कुल। तो या फिर तो सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो बहुत। जाता है, क्योंकि हम फिर कुछ कुछ चीजें पढ़ लेते हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें तो इसी लैंग्वेज में समझ में आता है, और लेकिन समझाना तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके। तो एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। या एग्जैक्टली। तो सर, जैसे पास्ट ट्रॉमा से आते हैं कई बार पेशेंट्स हमारे पास कि हमारे को नींद नहीं आ रही आफ्टर दैट टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे हम्म। हम कैसे उनको मतलब कैसे उनको टैकल करें और उनको कैसे उस टाइम हेल्प किया जाए? हाँ, पास्ट ट्रॉमा कई बार आउट ऑफ ग्रीफ पेशेंट, तो स्पेसिफिक हमारे पास रूब्रिक्स है जो एलिमेंट्स फ्रॉम जी। राइट। तो फिर हमारे यस। पास एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज आ जाता है, फिर देन वी सी दैट, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना कॉज को। फिर हमारे पास कुछ ऐसे रेमेडीज है, जैसे कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस, एक अवेना सटाइवा, इंसोम्निया ऑफ अल्कोहलिक्स, एसोसिएटेड कंडीशंस क्या है। तो वो एक शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, एटलीस्ट वो होम्योपैथी का बोन है कि हमारे पास कॉज के हिसाब से कुछ मेडिसिन हो जाती है। या फिर कभी कभी जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज हो, कॉफी या प्लेजरेबल सरप्राइजेस, उसके बाद से एक्साइटमेंट, राइट। तो वो हमारे पास बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है या इंडिविजुअल नीड केटर करने के लिए। ओके। तो सर, हम लोग कैसे मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म स्लीपलेसनेस के साथ आया बहुत सालों से, जी मुझे नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, तो हमारे को उसको मैक्सिमम पेशेंट्स तो ऐसे ही रहते हैं जो स्लीपिंग पिल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो बहुत, अगर इतना क्रॉनिक इंसोम्निया है तो उसको ऑफ ड्रग करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हिज बॉडी इज सो डिपेंडेंट ऑन ऑन दोज ड्रग्स। फिर कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी है जिसको अप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ड्रग डिपेंडेंट केसेस को अगर ऑफ ड्रग, तो शायद एलएम पोटेंसी कहीं कहीं लोगों ने लिखा है, या फिर स्पेशली अगर वो इंसोम्निया एसोसिएटेड है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स से, तो कम से कम 6 महीने से 6 महीने, कम से कम 6 महीने, और एवरेजली 2 साल तो उसके मेडिसिन मतलब स्टॉप ना किए जाए, टेपर कर करके फिर एलएम पोटेंसी साथ में इंट्रोड्यूस की जाए, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस। और ये तो बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी हम लोग तो नहीं, कभी कभी एकदम बिगिनर्स कभी कभी ये करते हैं कि बहुत पैशनेट होंगे, बहुत देखे हैं होम्योपैथी के रिजल्ट्स, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि अरे वो कुछ लेने की जरूरत नहीं, मैं कल से आपका पूरा बंद करा देता हूँ। तो ये तो जो कहते हैं ना कि जोश तो बहुत होता है लेकिन होश शायद थोड़ा कम होता है, तो इट इज बस 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 ये बंद कर दो, ये सब कर कल से, दैट इज नॉट अ वेरी आइडियल अप्रोच। और बहुत ही ईमानदारी से बोलूं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये ड्रग डिपेंडेंट केसेस को, मतलब कैसे, मतलब उसकी एलोपैथी दवाई भी छुड़ानी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एलोपैथी, मतलब वो वाली दवाई भी छुड़ानी है, होम्योपैथी दवाई से नींद भी इंड्यूस करनी है, और होम्योपैथी भी उसको लंबे समय तक लेना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने साल तक दवाई खाते रहे पेशेंट्स। तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, इजियर सेड देन डन। यस एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली।
इसको इवैल्यूएट करना और इनको फटाफट, अगर वो चाहते हैं कि हमें कल से ही नींद आ जाए, तो हमारे को उनको टाइम देना पड़ता है कि भाई अभी रुको, कुछ टाइम लगेगा, गिव अस सम टाइम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर ये ये स्लीपलेसनेस की ज्यादा प्रॉब्लम मेल्स में ज्यादा है या फीमेल्स में है? किसमें कॉमनली ज्यादा पाया जाता है? देखिए, मैंने ऐसा कोई रेशियो तो मैंने ऐसा देखा ऐसे नहीं ओके। है। अच्छा। मेरे हिसाब से तो दोनों में है। हाँ, कुछ ओके। चीजें, दूसरी कुछ चीजें जरूर है, जैसे नाइट टेरर जो मेल्स में ज्यादा है, मेल चिल्ड्रन में ज्यादा है। लेकिन ये तो इट इज इंसोम्निया इज कॉमन इन बोथ जेंडर्स, ओके। मेल्स एंड फीमेल्स। और इसका पूरा इफेक्ट मेरे जिनके खास करके जैसे नाइट शिफ्ट में जिनका रहता है उसका किस तरह से इफेक्ट करता है जिन लोगों नाइट की शिफ्ट नाइट मैम शिफ्ट? देखिए, हाँ। मैम वही है। अगर हाँ, एक चीज है मैम, अगर हम्म, अ, जिनका परमानेंट नाइट शिफ्ट है, हम्म, उनके पास तो वैसे अपॉर्चुनिटी है कि वो डे टाइम में अपना रेस्ट और स्लीप अच्छे से एडजस्ट करे। ओके। लेकिन जो नहीं होता है, या किसी भी तरीके से जिनका शिफ्ट चेंज होता रहता है या नाइट हम्म, शिफ्ट है, तो हम्म, पहले तो इंसोम्निया को लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं, और फिर इंसोम्निया से जो होने वाली एक चीज है जो स्लीप डिप्राइवेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। हम्म, तो जब पेशेंट को खुद को लगता है कि मेरी नींद या तो नॉर्मल नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, या तो, अगर पेशेंट को समझाने की भाषा में अगर बोलूं तो, या तो देर से नींद लगती है, या बार बार नींद खुलती है, या नींद का ड्यूरेशन ही कम है, या फिर उठने के बाद भी फ्रेश और एनर्जेटिक नहीं लगता। ये ये इनमें से कोई एक या ज्यादा फैक्टर्स हो, और जो किसी भी तरह का फैक्ट किसी भी तरह का रीजन हो, और अगर लंबे समय तक या चल रहा है इंसोम्निया, तो स्लीप डिप्राइवेशन जो एक चीज जो हम बोलते हैं ना कि 4 स्टेजेस में कई रेफरेंसेस में दिया है। अगर 24 घंटे की नींद नहीं हो रही है तो स्टेज 1, और अगर बढ़ता जा रहा है तो स्टेज 2, स्टेज 3 में फिर हेल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, स्टेज 4 में और ज्यादा जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर एक बात करें तो जैसे कभी भी एनर्जेटिक नहीं लगना, थका थका लगना, दिन में बहुत नींद आना, चिड़चिड़ लगना, हेडेक होना, थिंकिंग डिफिकल्टी, कंसंट्रेशन डिफिकल्टी, ये तो फिर भी थोड़े माइल्डर सिम्टम्स है। अगर थोड़े सीवियर सिम्टम्स अगर देखे स्लीप डिप्राइवेशन के, तो इनवॉलंटरी आई मूवमेंट्स, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स, ट्रेम्बलिंग ऑफ द हैंड्स, हेल्यूसिनेशंस, चाहे वो ऑडिटरी हो या विजुअल हेल्यूसिनेशंस हो, फिर जजमेंट इम्पेयर होने लगता है, और कभी कभी इम्पल्सिव बिहेवियर होने लगता है कभी कभी। अगर हम लेमैन के लिए ही मेनली जो सेशन लेते हैं, अपर्णा मैम ने बताया था, तो जो मुन्ना भाई का जो एग्जाम्पल है, अ, संजय दत्त का जो कैरेक्टर है, केमिकल लोचा वाला। केमिकल लोचा वाला, स्लीप डिप्राइवेशन। हाँ। हाँ मतलब हाँ, इतने मतलब 2 या 3 दिन की नींद से तो शायद हेलुसिनेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ। इंडिविजुअली वो तो स्टेज, लेकिन वो स्लीप डिप्राइवेशन का ही एक सिम्टम है, जब प्रोलॉन्ग स्लीप डिप्राइवेशन कॉजेस हम्म, हेल्यूसिनेशंस। सही। फैमिली हिस्ट्री का क्या रोल रहता है इसमें कि अगर कुछ 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 डिसऑर्डर्स में तो बोला है, जैसे स्लीप वॉकिंग हो, स्लीप टॉकिंग हो, नाइट हम्म, टेरर्स, उसमें भी हम्म, फैमिली हिस्ट्री रह सकता है। हम्म, तो बहुत सारे इसमें, और अदर देन व्हाट इज रिटन इन द सोर्सेस और इन द टेक्स्ट, वैसे हम देखते हैं कि कई चीजें वैसे हेरिडिटरी मिल जाती है, भले ही उसका ना कुछ लेना हो, बिकॉज आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो एक ही है। जी। एटलीस्ट जो पैरासोमनियाज है, कुछ कुछ स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, ये तो है हेरिडिटरी फॉर श्योर। हम्म, अब अगर हम बात करें कि पर्सन को कब ये लगना चाहिए, क्या उसको सिम्टम्स को देखना चाहिए कि हाँ मुझे इंसोमेनिया हो गया है, एक जनरल अगर हम कॉमन लेमैन की बात करें, क्योंकि जनरली पेशेंट जो आते हैं वही सोचते हैं मैंने सोचा नींद आ जाएगी, आज नहीं आई या दिन में आ जाएगी, मैं दिन में सो लिया था, कहते हैं पावर नैप होती है जो वो ऐसी होती है तो इसलिए रात को नींद नहीं, मतलब वो अपने तरीके से सोचते हैं इसको इंसोमेनिया को, नींद के ना आना।
तो कॉमन मैन को तब सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे एक प्रॉब्लम है, इसके लिए मेडिकेशन ही मेरी हेल्प करेगी। उसके लिए क्या साइंस उसको सोचने चाहिए। हम जैसे जो बोलते हैं ना कि जैसे लेमैन को समझाने की भाषा में अगर हम्म, बोले तो हम्म, कि अगर खुद उनको ऐसा लगता है कि मेरी स्लीप दूसरों की कंपैरिजन से कुछ अलग है, या हम्म, मुझे खुद ऐसा लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, या तो मैं बहुत देर से सोता हूँ या देर से सोती हूँ। कई बार मेरी नींद खुल जाती है बिना वजह, या फिर वजह भी हो, कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, कुछ फिजिकल एलिमेंट की वजह से, या फिर बहुत शॉर्ट स्लीप है कि मुझे 2 घंटे ही नींद आती है, 3 घंटे ही नींद आती है, फिर उसके बाद नींद ही नहीं लगती, बिस्तर में कितने भी देर पड़े रहो, या फिर उठने के बाद कभी फ्रेश लगता ही नहीं, कभी एनर्जेटिक लगता ही नहीं। अगर ऐसा लग रहा होगा तो फिर डेफिनेटली आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए। ठीक है। ओके सर, जैसे अभी आपने बात की थी, ये डॉक्टर समीक्षा जी ने जैसे पूछा था नाइट शिफ्ट वगैरह से, तो उसमें जैसे हम लोग, जैसे पेशेंट्स आते हैं वो दिन में सो रहे हैं, तो हमें उन्हें क्या एडवाइस करना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है मेलेटोनिन जो सा है वो रात में सिक्रीट हो रहा है, सेरोटोनिन दिन में है, तो हमें क्या एडवाइस करना चाहिए सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेलेटोनिन इज सिक्रीटेड, कि वो आराम से इस एनवायरनमेंट में सोएं या ऐसा करके सोएं ताकि उनकी नींद भी पूरी हो और उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम ना हो, उनका साइकिल भी खराब ना हो। मैम जैसे हमने अभी बोला ना कि क्योंकि बिकॉज स्लीप वेक साइकिल मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल नेचुरल लाइट से चलता है, लेकिन हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट से। अगर फिक्स्ड है कि फिर से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो वो चीज है कि जिनका नाइट शिफ्ट फिक्स फिक्स है, उनके लिए तो अच्छा स्कोप है अपने मतलब स्लीप साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए। जो फिर से वही स्लीप हाइजीन की बात आ गई मैम की, फिर आपका जो सोने का टाइम है, जो नाइट शिफ्ट का कुछ भी टाइम हो, जैसे रात को 10 से लेके सवेरे 6 या कोई भी आर्बिट्ररी दिन, तो आपके पास तो आपकी तो कंपलसरी है, क्योंकि स्लीप एक रिस्टोरेटिव रेस्ट, रिस्टोर और रिपेयर का फंक्शन है। तो स्लीप तो मस्ट है, आप भले ही 5 घंटे की लो, 7 घंटे की लो, 8 घंटे की लो। तो जो आपने आपका टाइम आपने डिसाइड कर रखा है कि इस टाइम में मुझे सोना है और इस टाइम में बाकी के काम नहीं करता हूँ, तो उस टाइम में अपना स्लीप हाइजीन प्रॉपर, वापस से वही लाइफस्टाइल की बात आ गई। जब पॉसिबल हो सनलाइट एक्सपोजर भी ले, जब पॉसिबल हो एक्सरसाइज भी करे, और तब अपना स्लीपिंग कंडीशंस को अच्छे से रखे। और बिकॉज सिंस आपका पता है नाइट शिफ्ट है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चले। और ऐसा नहीं है कि भाई मुझे रात को काम करना पड़ता है तो दिन में भी तुम बाकी के काम कब करूं। यू कैन सेट योर प्रायोरिटीज, यू कैन सेट तो क्या कहते हैं कि ठीक चीजें ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर ले, अलाइन कर ले। स्लीप इज वेरी एसेंशियल। अच्छी स्लीप लोगे तो रात में प्रोडक्टिविटी अच्छे कर पाओगे। या एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो सर जैसे हमारे पास कई बार पेशेंट, जैसे अभी डॉक्टर सोनी ने पूछा कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो उनको कैसे पता लगता है, तो हमारे को कोई इसकी स्लीप स्टडी भी करवानी पड़ती है डायग्नोसिस करवाने के लिए? स्लीप स्टडीज में मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहूँ, आज तक मैंने किसी को स्लीप स्टडी रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मैंने मेडिसिनल लेवल पर मैनेज करने की कोशिश की है। और एक प्रैक्टिकल चीज है मैम कि लोग सीधे सीधे साधे हेमेटोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाते। जी, तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप स्लीप स्टडी करिए। तो या एग्जैक्टली। बहुत से लोगों को तो यही मुश्किल हो जाता है कि भाई इसका भी स्टडी होता है, ये भी क्या करेंगे, फिर कौन से डॉक्टर करेंगे, फिर उसकी फीस कितनी होगी, जरूरी है क्या? आप एक काम करो ना, दवाई देके देखो, नहीं हुआ तो कराएंगे। तो दीज आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो आज तक मैंने तो पेशेंट को कभी किसी को एडवाइस नहीं किया, और आज ओके तक ऐसा भी कोई हाँ हाँ। ओके। नहीं दैट, ये वैसे कई बारी कुछ आते हैं जैसे पेशेंट्स ना, तो वो कहेंगे कुछ इसका हम लोग टेस्ट करवा ले कि हमारे को नींद क्यों नहीं आ रही है, कुछ इसके टेस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा था। बट सर इसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं, नेचुरल या होलिस्टिक अप्रोचेस कुछ ऐसी हो जिससे कि हम हेल्प कर सके उनके स्लीप इश्यूज में, कुछ अदर देन होम्योपैथी, नेचुरल या होलिस्टिक, क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं? अदर देन होम्योपैथी बहुत, एक जैसे मॉडर्न मेडिसिन में तो पूरा स्लीप मेडिसिन एक है, और बाकी सारे कुछ थेरेपीज का मैंने पर्सनली स्टडी नहीं किया, क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता था कि जब हमारे पास में मेडिसिनल और ऑक्सिलरी मेजर्स इतने हैं
तो मैंने उसका पर्सनल, मैं उसके डेप्थ में नहीं गया, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर थेरेपीज एंड उनका भी अपना स्कोप होगा। आई आई डिड नॉट गो इनटू दैट डेप्थ। ओके। नहीं, जैसे कई बार पेशेंट्स आते हैं ना कि हम लोग वो हर्बल टी लेते हैं, कैलेमाइन, कैमोमाइल, कैमोमाइल। कैमोमाइल। मिल्क। एंड फिर जैसे हम लोग उनको कहते हैं कि जब आप सो रहे हो, पूरा अंधेरा करके सो रूम में, एंड वही जैसे पहले बात हुई थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए इतने आज पहले, तो वो जैसे हम वो लोग गाइड करते हैं, तो ये जो टीज या हर्ब्स वगैरह है, आर दे हेल्पफुल, या ये हमारी मेडिसिन में कुछ, तो जैसे कुछ मेडिसिन कुछ होती है हमारी, जो जैसे प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, तो ये सब चीजें हमारी मेडिसिन में कुछ बाधा डालती हैं? मैम, दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसके अलावा, कि एक तो सबसे पहले ऑक्सिलरी मेथड्स और बाकी थेरेपीज, एक एक मैं पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि अ, एक तो हैनेमन ने ऑक्सिलरी मेजर्स वाले जो आखिरी के 5 एफोरिज्म्स है, उन्होंने तो खुले दिल से, मतलब बड़े दिल से बोल दिया कि दीज मेजर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, दीज आर इफेक्टिव। मैं कई बारी सोचता हूँ कि बाकी के ऑक्सिलरी मेथड्स और थेरेपीज हैनेमन सर को पता होती तो क्या वो उसको भी उसमें इंक्लूड करते, हम्म, या फिर आज की तारीख में कुछ थेरेपीज, कुछ साइकोथेरेपीज, कुछ प्रैक्टिसेस ये होते तो क्या और होते तो उसको इंक्लूड करते। मैम किसी चीज को डिनाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का एक अपना अपना स्कोप है, हम्म, इंटरनल मेडिसिन का अपना सा रोल है। और वो एक बात। दूसरी बात जो है कि मुझे खुद ऐसा लगता था कि जो हम बोलते हैं ना कि मोटा मोटी कि आयुर्वेदा इज प्रिवेंटिव, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन इज पैलिएटिव, एंड होम्योपैथी इज क्यूरेटिव। तो मुझे ऐसा लगता था कि, और जो आयुर्वेदा के बारे में कहते हैं कि आयुर्वेदा इज अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन जस्ट बीइंग अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर मुझे ऐसा लगता था कि अगर इस बात को देखें तो आयुर्वेदा इज फार सुपीरियर देन ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। फिर मुझे ऐसा लगता था, और वो प्रिवेंटिव वाला एस्पेक्ट होम्योपैथी में इतना है नहीं, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अगर हम फोर्थ एफोरिज्म को पढ़े, ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, तो फिर ऐसा लगता है अरे नहीं, वो प्रिवेंटिव वाला एस्पेक्ट होम्योपैथी में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल मेडिसिन की बात है। तो फिर बिल्कुल। से तो वो सारी एक तो जो एडजंक्ट थेरेपीज जो जितनी भी, जैसे आपने कहा, चाहे अरोमा थेरेपी हो, या चाहे ये टीज हो, या चाहे बाकी से जो थेरेपीज हो, साउंड साउंड हीलिंग आजकल काफी लोग उसको जा रहे हैं उसमें। तो या ये सारी थेरेपीज हुई, और फिर ऑक्सिलरी मेथड्स बाकी है, और ये प्रिवेंटिव वाला एस्पेक्ट। और एक जो आपके सवाल में एक जो सब क्वेश्चन था, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, ये हमारी फैकल्टी डिवाइडेड है। कुछ होम्योपैथ्स होते जो मना करेंगे कि आप होम्योपैथी के साथ एलोपैथी भी मत लो, आयुर्वेद भी मत लो, यूनानी भी मत लो, कुछ मत लो, कुछ मत लो। ये एक चीज है। और दूसरी चीज होती है कि कुछ होम्योपैथ्स बोलते हैं कि ये सब बंद रखो, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन पर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग बाम वगैरह। और कुछ होम्योपैथ्स होते हैं कुछ नहीं, बस हमारी रेमेडी करेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खुद हैनेमन ने द इफेक्ट्स ऑफ कॉफी वगैरह वो लिखा है। बाद में मैंने जे.एच. क्लार्क का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि these are remedies dynamic, and these substances in crude form do not hinder the action of the dynamic remedy, ऐसा भी एक है। लेकिन जे.एच. क्लार्क का एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि ये चीजें अफेक्ट नहीं करती, प्रोवाइडेड योर मेडिसिन इज करेक्ट, प्रोवाइडेड मेडिसिन पोटेंसी रिपीटेशन इज करेक्ट। और एक चीज, कॉफी कोई इतना ब्रॉड एंटीडोट नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी कॉफी तो एनहांस करती है कुछ रेमेडीज की एक्शन को, भले ही 5-7 बहुत गिनी चुनी रेमेडीज होंगी, बट वो तो एनहांस करती है। और एक मैंने किसी पेशेंट से सुना था, अपनी ड्रम स्टिक होती है ना, हम्म, उसको मराठी में शेवग्याची शेंग कहते हैं, हिंदी। कुछ कुछ पेशेंट्स का मानना है कि भाई ड्रमस्टिक से आपकी होम्योपैथी दवाई एंटीडोट हो जाती है क्या? अच्छा अच्छा, ये तो भी, हमने पहली हाँ, बार सुना। ये भी 2-3 पेशेंट्स ने मुझे सवाल पूछा। मैम, ओके। मैम पीछे जो डिस्टरबेंस है ना, इसीलिए मैं अननोइंगली लाउडली बात कर रहा हूँ शायद, नहीं नहीं इसीलिए सर, आप बिल्कुल डिस्टरबेंस। ठीक बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सर, डाइट का क्या रोल है हमारे बेटर स्लीप के लिए, या जो अफेक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, दोनों ही बता दो।
एक 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 तो जो बोलता है ना कि भाई 10 घंटे पहले कोई भी स्टिमुलेंट्स मत लो, और 3 घंटे पहले कोई भी हैवी मील मत लो, 2-3 घंटे पहले कोई भी हैवी मील मत लो। तो अ, अ, क्या है एक्चुअली, अगर वैसे देखा जाए तो जो खाने के बाद हमें ड्राउजी लगता है तो सारा ब्लड परफ्यूजन जो है वो जीआईटी की तरफ ज्यादा होता है, तो सोने की इमीडिएटली बाद तो वैसे ड्राउजी लगता है। लेकिन इफ यू गो बाय द बुक, तो ये 10 घंटे पहले कोई स्टिमुलेंट्स ना लेना, और सोने के एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले कोई हैवी मील ना लेना, दैट इज एडवाइजेबल। ओके। और सर जैसे कुछ पेशेंट्स में नींद ना आने का ये भी एक कारण होता है कि उनके क्रॉनिक पेन्स रह रहे होते हैं, तो फिर इस तरह के लोग पेशेंट्स को कैसे डील किया जाए? हाँ मैम, वही जो जो उस तरह के केसेस में ना, जो ट्रीट द कॉज वाली बात आ जाएगी। तो जी। इस तरह कई बार ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स, या कोई भी ऐसा पेन या कोई कोई भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट, उसके साथ पेशेंट्स बोलते हैं कि एक काम करो ना, नींद की भी दवाई दे दो आप साथ में। दवाई दे दो। तो कुछ कुछ पेशेंट्स तो समझ जाते हैं कि देखो, आपका नींद नहीं आने का कारण तो ये है, आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी तो अपने आप नींद आ जाएगी। फिर लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कि फिर उनके बाद देन इट रिमेन्स द चॉइस ऑफ द फिजिशियन, चाहे एसएल दो या सच में कोई अपना होम्योपैथिक कोई नींद का मेडिसिन दो, बायोकेमिक, मेडिसिन। चाहे वो भी अपने होम्योपैथिक मेडिसिन, पोटेंटाइज मेडिसिन में कवर कर लो, या फिर बायोकेमिक मदर टिंचर एज अ सपोर्ट दो, देन इट रिमेन्स द चॉइस ऑफ द फिजिशियन। लेकिन मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ, आपका जो कॉज है वो पेन है, पेन ठीक हो जाएगा तो अपने आप नींद आएगी, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो सुन लेता है उसको मैं नहीं देता हूँ, और जो नहीं कन्विंस होता है फिर उसको तो कुछ फिर ना वहाँ कुछ नहीं देना कर। पड़ता है। ओके। कुछ कुछ रेमेडीज हमारे पास ऐसी है, जैसे पैसिफ्लोरा, सिंपल सी रेमेडी है। तो वन ऑफ द कॉज, कुछ कुछ सोर्सेस में लिखा है कि देर इज नो पेन, कुछ कुछ सोर्सेस में लिखा है इवन पेन कैन बी द कॉज ऑफ इंसोम्निया, बाकी में लिखा है एंजाइटी, स्ट्रेस, वरीज कैन बी द कॉज। लेकिन फिर ये एक इम्पोर्टेंट एडिशन हो सकता है, जो किसी फिजिकल पेन की वजह से कह रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, तो आपके पोटेंटाइज रेमेडी के साथ में ये मदर टिंचर, क्योंकि और वो कोई स्पॉइल भी नहीं करता केस, क्योंकि पोटेंटाइज रेमेडी, इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक्ट्स ऑन द डायनामिक प्लेन, एंड मदर टिंचर एक्ट्स ऑन द फिजियोलॉजिकल प्लेन, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो तो यूज करने में हरकत नहीं है मेरे ख्याल से। ओके सर, थैंक यू। हमारा जनरल अप्रोच क्या रहता है कि अगर कोई सडन आया कि उसको शॉर्ट टर्म स्लीप प्रॉब्लम हुआ है कोई, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे फिर? शॉर्ट टर्म स्लीप प्रॉब्लम, एक ये हो सकता है कि बस कुछ टेम्पररी चेंज ऑफ रूटीन है, तो वो है, तो बस वो जो रूटीन ठीक होने से ठीक हो जाएगा। या फिर कभी कभी एक शॉर्ट टर्म जो जो कहते हैं ना कि जेट लैग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज। तो जेट लैग, तो उसके, या फिर इफ द सिम्टम, या फिर एक वही चीज है कि इफ द सिम्टम्स आर नॉट दैट बदरसम, लीव इट लीव इट अप टू नेचर। या फिर सिम्टम्स बदरसम है या पेशेंट बदरसम है कि दवाई तो दे, हाँ, ये देन गिव सेकंड द वाला मेडिसिन। ज्यादा वो सही है कि अगर वो बिल्कुल ही हो जाए कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए हाँ, चाहिए। हम्म, यस। तब क्या अप्रोच रखते हैं आप फिर? अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं। हेलो। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आया है या फोन है उनका कोई? या तो सबके एक तो पेशेंट आए हैं या नेटवर्क हम्म, प्रॉब्लम। हाँ सर, रिज्वाइन करेंगे, मैं एक मिनट दोबारा भेजती हूँ। आई एम सॉरी मैम, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी।
वो कुछ एक्चुअली नोटिफिकेशन आया, मैं उसको ये करने गया, मैं स्वाइप करने गया तो इंस्टा ही बंद हो गया। कोई बात नहीं, चलिए। हाँ मैम, अगर कोई एक्यूट कॉज ऑफ इंसोम्निया हो हम्म, तो आप कह रहे थे ना, भले एक्यूट कॉज है, जैसे कोई सडन ग्रीफ है, कोई सडन स्ट्रेस है, सडन, तो अगेन फिर वो ट्रीट द कॉज वाली बात आ जाती है, बस वही। और अगर यही रिकरिंग है तो? हाँ यही रिकरिंग है तो फिर भी देन ट्रीटमेंट तो फिर कोई बनता ही सेम है, अप्रोच रहेगा? सेम अप्रोच रहेगा, ट्रीट द कॉज, ये अप्रोच सेम रहेगा शायद। कॉजेटिव फैक्टर को हमें निकालना पड़ेगा वहां से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए। सर आपको अपना जो आपने कुछ ऐसा रियल लाइफ में केस किया हो ऐसे ट्रीट, उसके बारे में आप प्लीज हमें कुछ बताएं। हाँ हाँ मैम, ये जो अलग अलग, ये अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर्स जो है ना, जो अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, जिंकम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, या और हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन एडल्ट्स में मैंने लैकिसिस, ओपियम, ग्रिंडेलिया, लॉरेसिरेसिस, ये काफी यूज किया मैंने, अच्छा रिस्पॉन्ड करता है ये। ओके और रहा बात फिर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में हमेशा मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले, क्योंकि कभी कभी पेशेंट प्रेजेंट नहीं होता, बस आ, बस ये 8 साल का लड़का है, 10 साल का लड़का है, ये रोज बेड वेट करता है, कभी कभी तो बस इतनी हिस्ट्री रहती है, फिर कभी स्पेसिफिक्स पे जाओ, कभी कभी व्हेन ओनली हैबिट इज द कॉज, फिर कभी इक्विसिटम यूज किया, इक्विसिटम से कुछ को रिजल्ट मिला, कुछ को रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि आप सिर्फ नियर स्पेसिफिक से कितने केसेस आप मतलब ये कर लेंगे ना क्रैक। फिर एज वर्बास्कम मैंने कभी यूज किया कुछ केसेस में जहां मुझे कुछ हिस्ट्री नहीं मिला, फिर डिपेंडिंग ऑन अदर इंडिकेशंस, डिपेंडिंग ऑन अदर, अगर मुझे वर्मी चाइल्ड इरिटेबिलिटी मुझे अगर दिखता है तो सीना से कुछ केसेस क्रैक हुए, तो जो एन्यूरिज्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, स्लीप एन्यूरिसिस हुआ, बाद में नाइट मेयर्स, नाइट टेरर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एक केस था कि जहां नाइट टेरर वाज एसोसिएटेड विद एक्ने, हालांकि वो टीनेज का केस था, नाइट मेयर, हालांकि नाइट नाइट टेरर उससे थोड़े कम एज ग्रुप में होता है, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन एक साथ मिला, एक्ने एसोसिएटेड विद नाइट टेरर, कालीब्रोम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। इंसोम्निया अलग अलग अच्छा रीजन से, कभी कभी जो केसेस जो बहुत ड्रग डिपेंडेंट केसेस थे, उनको केसेस में मैं ना उनकी एलोपैथिक मेडिसिन टेपर कर पाया, ना कभी कभी होम्योपैथी से हेल्प कर पाया, जो ड्रग डिपेंडेंट केसेस थे। लेकिन जहां कॉज मिला, कि एक प्रोफेसर आते थे मेरे पास, ही वाज अ वेरी क्रिएटिव मैन, वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, कहते थे कि मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, ये मुझे मेरा हमेशा ऐसा चल रहा था, मैं ये करूं बेटरमेंट के लिए, वो करूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। अच्छा कॉफी, ओके उन्होंने बहुत अच्छा कॉफी को उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, तो मैं उन्हें बात करते करते समझा रहा था कि नींद नहीं आने का कारण हमेशा कोई बॉदरसम या ट्रबलसम रीजन नहीं होता हमेशा, बिकॉज यू आर सो इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हम आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, तो ही अच्छा कॉफी से वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया उन्होंने। Okay, that's good. Even I remember when my daughter went to America, तो मैंने उसको रस्टॉक्स दिया था फॉर दिस circadian साइकिल जो चेंज होगा उसका, तो दैट विल बी हेल्पफुल, नक्स वोमिका एंड ओके रस्टॉक्स, तो उसको ओके, कोई जेट हुआ नहीं उसमें। सॉरी अच्छा, सॉरी, मैंने कहा उसको जेट लैग हुआ नहीं उसकी वजह से। जेट लैग हुआ नहीं, अच्छा, या दैट वाज हेल्पफुल, नक्स वोमिका और ऑक्यूलस भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जेट लैग के लिए, कौन विच सी वन, सर? कॉक्यूलस, कॉकुलस, यस इट्स वेरी, कॉक्यूलस कॉक्यूलस, आर्निका, नक्सवामिका, या जेल्सिमियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम। और एक केस है ना कि जो
कभी कभी ना जैसे मदर टिंचर में डोज मैटर्स अ लॉट, जैसे हम पोटेंटाइज मेडिसिन में बोलते हैं ना, द पोटेंसी एंड द रिपीटेशन मैटर्स और द Yeah. स्केल ऑफ पोटेंसी मैटर्स। तो मदर टिंचर्स में कितने ड्रॉप्स दिए गए हैं, दैट मैटर अ लॉट। मैं आपको एक अच्छा बोरिक में डोज का रेफरेंस बताता हूँ, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर के डोज का रेफरेंस, Mm-hmm. क्योंकि इन जनरल ना अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, वैसे तो बहुत सारे टिंचर्स हैं जिनके लार्ज डोजेस दिए, कुछ टिंचर्स हैं जिनके छोटे डोजेस दिए, 2 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन 10 ड्रॉप्स, कुछ 1 ड्रॉप, कुछ जैसे मदर टिंचर्स का। तो बोरिक में पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा का लिया है, लार्ज डोजेस ऑफ मदर टिंचर आर रिक्वायर्ड 30 to 60 ड्रॉप्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो कई बार तो मुझे जब ऐसा लगा कि भाई कोई बहुत ऐसा पीक्यूआरएस नहीं है, सिंपल खाली फर्स्ट पोटेंसी में या बायोकेमिक में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो पैसिफ्लोरा दो। तो कई बार मैं 10 ड्रॉप्स इन द इवनिंग एंड 10 ड्रॉप्स आफ्टर डिनर ऐसा देता था। तो जहां रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो फिर ये जो बोरिक ने डोज जो स्पेसिफाई किया है, लार्ज डोजेस ऑफ मदर टिंचर आर रिक्वायर्ड 30 to 60 ड्रॉप्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो फिर मैं ऐसा बोलता था कि आप सोते कितने बजे? बोले 12 बजे। मैं बोलता और 6 बजे लो, 8 बजे लो और 10 बजे लो, जरूरत पड़ी तो सोने के आधे घंटा पहले भी लो, 30 ड्रॉप्स लो। Okay. तो फिर कभी कभी ना मदर टिंचर्स में ये डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिकॉज दोज आर मटेरियल डोजेस ना, फिजियोलॉजिकल डोजेस। Yeah. तो जैसे वो इन जनरल वो प्रैक्टिस, वो रूटीनिस्टिक प्रैक्टिस करने के बजाय 10 बूंद 2 बार या 3 बार लो, इसके बजाय जो स्पेसिफाई किया है कभी कभी, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो पैसिफ्लोरा लार्ज डोजेज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो जो मैंने ये एक हाइपरटेंशन के केस में दिया था, इसकी वजह से उसको नींद नहीं आती थी, तो मैंने भी बोरिक में पढ़ के ही उसको दिया, और विद इन 3 डेज उसका मतलब ऐसा था कि मेरे को तो 10 बजे ऐसा लगता है कि बेहोश होके सो रहा हूँ मैं बस। बहुत उससे एक अच्छी याद उसका आया, मतलब उसका हाइपरटेंशन मतलब इतना अच्छा कंट्रोल में आया, जो मतलब वो एक एलोपैथिक मेडिसिन पर ही थे जिसका 80 mg ले रहे थे वो डेली, तब भी उनका ब्लड प्रेशर 160-70 रहता था, लेकिन वो इसकी डोजेज से 3 डेज में उन्होंने मुझे आज तक मतलब अच्छा रिजल्ट है, वो आज तक वही चल रहे हैं कि आप मुझे दे दो, उन्होंने आना है 15 दिन बाद, वही डोज उनकी लगातार चल रही है। बीच बीच में साइक्लिक की 2-3 मैं देती हूँ उनको वीक में कि हाँ कि ये भी लेना है, उसको दिन उसको छोड़ना है, तो बट वो बहुत अच्छा केस चल रहा है। ये आपने सही बोला कि जो रिकमेंड किया गया है वो कई बार बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है। और अदर देन अगर इंसोम्निया की बात है तो एक एस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यही वाली, यही पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा इज आल्सो गुड मेडिसिन फॉर एस्थमा। एक ऐसा एक क्रॉनिक एस्थमेटिक था, उसको इंसोम्निया था, तो फिर उसको ही वाज रिलीव्ड बाय पैसिफ्लोरा फॉर बोथ इंसोम्निया एंड एस्थमा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है इवन मदर टिंचर्स में, जो कॉन्कोमिटेंट्स है, वो भी कई बार काम में आ जाते हैं। जैसे एक अदर देन इंसोम्निया की अगर एक बात करूं तो एक अननोन केस ऑफ माइग्रेन, और उसको एमेनोरिया था, वो लड़की को शायद 22 साल की लड़की। तो फिर उसको अच्छा बोरिक ने दिया, इट एस्टैब्लिशेस द मेंस्ट्रुअल फ्लो इन गर्ल्स, अ नोन केस ऑफ माइग्रेन विद एमेनोरिया, शी वाज बेटर बाय दामियाना। Okay. और फिर बाद में मैंने रेपर्टरी में देखा तो डिलेड मेनार्च है उसमें दामियाना में, वैसे डिलेड मेनार्च है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस माइग्रेन एसोसिएटेड विद एमेरिया उसको हेल्प किया। एनीवेज कमिंग बैक टू इंसोम्निया। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि जब हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं लेकर कि ये रात को सोता नहीं है या मतलब इसकी स्लीप बहुत कम है, टॉडलर्स की या इन्फेंट्स की, तब हमें क्या करना चाहिए? मतलब बस, या अभी हमने ये देख लिया इरिटेबल है तो चलो कैमोमिला दे दिया, कुछ ऐसे कर दिया, बट हम लोग उसको कैसे हेल्प करेंगे? इन्फेंट्स और टॉडलर्स को क्या डोजेस रहेंगी, कैसे रहेगा उस टाइम? हाँ मैम, ये जो कुछ रेमेडीज हमारे, जैसे आपने कैमोमिला बोला, एग्जैक्टली उसी टाइप के जलापा या सोरिनम, लाइकोपोडियम, वो जो उसको, लेकिन कई बार ना वो हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन तो उनको बोल देता है कि नहीं नहीं, वो तुमको बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो थोड़ी तुम्हारे हिसाब से चलेगा, इतना बोल के वो एंड कर देते हैं। लेकिन इफ दैट इज, अगर वो, लेकिन मैं
ज्यादा मैं ट्राई करता हूँ कि पेरेंट्स को समझाऊं. आई डोंट ट्राई कि अनलेस एंड अनटिल कोई सच में उस तरह की इरिटेबिलिटी और कुछ हो, और सिर्फ उसका स्लीप का इशू, अगर कुछ उसका स्लीप डिसऑर्डर नहीं है कुछ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई कुछ मेडिसिन ना दूं. कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं, कुछ लोग कन्विंस नहीं होते. ओके ओके. और ओल्ड लोगों में? ओल्ड लोगों में कई बार, हाँ, ओल्ड लोगों में कई बार देने की जरूरत पड़ती है, तो मैं देता हूँ. ओके. देन यू गो सिम्टोमेटिकली और देयर इज वन पर. सिम्टोमेटिक ओके. नहीं, कुछ नहीं. हाँ, अगर कुछ पीक्यूआरएस नहीं मिलता है तो कुछ जैसे कालीफॉस से स्टार्ट कर दिया. अगर अगर पहले बायोकेमिक से रिस्पॉन्ड कर रहा था, अभी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो थोड़ा 30 पे आ गए, 200 पे आ गए, या फिर मदर टिंचर्स पे आ गए, ओके. पैसिफ्लोरा वगैरह. यस. ठीक है. सर, फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को जो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं? फाइनल मैसेज यही है कि जैसे हम जो कह रहे थे ना कि एक आयरिश प्रोवर्ब है कि a good laugh and a long sleep are perhaps the two best cures for anything. और एक वो कहते हैं ना कि दलाई लामा का भी एक स्टेटमेंट है कि स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन, या a sure bridge between hope and despair is a good sleep. जो 6 बेस्ट डॉक्टर्स में रेस्ट एक चीज आती है जो चार्ली चैपलिन ने कहा था, एंड देयर कैन बी नो बेटर रेस्ट लाइक स्लीप. तो ना बहुत बहुत सी ऐसी चीज है कि जैसे ये टॉपिक चूज करने का रीजन यही था कि जैसे जो तमाम स्लीप डिसऑर्डर्स है उनमें होम्योपैथी का रोल बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है, ये भी एक चीज है. और जब हम माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं, माइंडफुल स्लीपिंग की बात क्यों नहीं करते? और जो कहते हैं, जो कभी कभी जो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपने आप को हेल्दी रखना, तो बस एक गुड बेसिक नॉलेज ऑफ स्लीप एंड फॉलोइंग ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्दी. कभी कभी यही बात हो जाती है. तो दिस इज द थिंग. एंड जैसे आप अपने डाइट को निग्लेक्ट करोगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे. हाइड्रेशन को निग्लेक्ट करोगे तो आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे. तो स्लीप को अगर निग्लेक्ट करोगे तो आफ्टर इफेक्ट्स उसके बाद में झेलने पड़ते हैं. तो चाहे वो कितने समय के बाद दिखने लगेंगे वो तो डिपेंड करता है. तो हेल्दी रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई सच में ऐसी बीमारी हुई हो जो किसी के हाथ में नहीं आ रही. अगर वो छोड़ दे तो हेल्दी रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और स्लीप इतना जरूरी है हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी, और बीमारी से जल्दी रिकवर होने के लिए भी स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है. जब मैं पीजी कर रहा था तो डॉक्टर अय्यर करके थे, नवी मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे. उन्होंने स्लीप एपनिया पे काफी काम किया था. उन्होंने कहा था कि रिसर्चेस हुए कि डायग्नोसिस एकदम प्रॉपर है, ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपर है, लेकिन फिर भी उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. ऐसा देखा गया जिनकी स्लीप अच्छी नहीं है, जिनका स्लीप पुअर है, उन लोगों का हमने स्लीप इंप्रूव कर दिया तो वो सेम मेडिकेशंस, पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग बेटर टू द सेम मेडिकेशंस. तो इसीलिए जो बोला जाता है ना कि स्लीप इज फॉर रेस्ट, रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडीली फंक्शंस. बिल्कुल सही. एंड ऑफ द मैसेज यही. फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की बुक्स में पढ़ाना शुरू करवा देते हैं दैट स्लीप रिपेयर्स योर बॉडी. बिल्कुल. एक लाइटर नोट पे एंड करते, जैसे पैरासोमनियास जो है ना, एन्यूरिसिस हुआ, स्लीप टॉकिंग हुआ, स्लीप वॉकिंग हुआ, वगैरह वगैरह. तो एक लेडी एक डॉक्टर के पास जाती है, बोले डॉक्टर साहब ये रात में बड़बड़ाते हैं, आपको पता है ये जो मौका दो, बिल्कुल पता, दिन में मौका दो. ये रात में बड़बड़ाते हैं, क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, बस दिन में बोलने का मौका दिया जाए. और जो स्लीप जो बोलते हैं ना, स्लीप के बारे में जो बोलता है ना कि स्लीप इज ए रिकरेंट, रेगुलर, रिवर्सेबल स्टेट ऑफ रिलेटिव इनएक्टिविटी. और जो बोलते हैं रिवर्सेबल, इसीलिए जो उपहास में या चाहे आउट ऑफ सरकाजम जो बोला जाता है ना, जो सच में सोया है उसको जगाना आसान है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत अच्छा और बहुत लाइट सा सेशन रहा. एंजॉय भी हमने बहुत करा.
थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच, Thank you, थैंक यू sir. मच Thank you. डॉक्टर सत्याजी कि बहुत मतलब टिप्स भी ऐसे थे और बहुत इजी। मेरे को लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत समझ में अच्छे से आया होगा कि स्लीप क्यों जरूरी है। और स्क्रीन Yeah. टाइम तो आजकल हम लोग कहते ही हैं कि हाँ कि बिल्कुल खराब कर रहा है हर किसी को। इसी वजह से टीनेजर्स में भी और चिल्ड्रन में भी इतनी ज्यादा स्लीप प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनका डाइट लाइफस्टाइल इतना चेंज है, कहीं पे योगा मेडिटेशन का कुछ रोल नहीं है उनकी लाइफ में। तो ये बिल्कुल। सब चीजें आपने हमें बताई हैं तो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा, उनको पता भी चला होगा कि स्लीप के लिए हमेशा मेडिसिन की तरफ नहीं भागना है, चाहे वो कोई भी पैथी है। बट स्टिल आप कुछ नेचुरल जो टिप्स हैं उनको भी आप अपनी लाइफ में लेकर आओ, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी पैथी है, Yeah. डिपेंड क्यों होना है बेसिकली। राइट राइट। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा, बहुत जल्दी फिर से आपसे मिलते हैं एक नई टॉपिक थैंक पर। यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। आपका खुद का Thank रिसर्च you. भी बहुत अच्छा है, और जो आप सब लोग इतने सालों से जो माइंडफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत सेंसिबल क्वेश्चंस थे। और वैसे स्लीप डिसऑर्डर्स तो टॉपिक है नहीं कि उसको एक सेशन में कवर किया जाए, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि कुछ डॉक्यूमेंटेड चीजों को प्रेजेंट करूं और वो बोलूं जो मैं एक्चुअली करता हूं, और या वो बोलूं जो मैं एक्चुअली नहीं करता हूं। हाँ नहीं सर, Yeah. बिल्कुल रहता है। जितनी ऑनेस्टी हम अपनी दिखाएंगे उतना ही व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है कि रटा रटाया कुछ नहीं आ रहा है। Yeah. एग्जैक्टली। बिकॉज यहाँ पे हमारा जो है वो यही है कि कॉमन मैन को समझ में आए कि होम्योपैथी उनकी कैसे हर केस में हेल्प कर सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स के लिए होता तो ऑब्वियस है कि इसका फॉर्मेट कुछ और होता और क्वेश्चन कुछ और होते, आपका बोलने का तरीका कुछ और होता, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता। तो हमने इसको बहुत लाइटर मोड पे ही रखा हुआ है। तो इसी के साथ मैं आस होम्योपैथी की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें सब कुछ बताया। आशा करती हूँ ये हमारे व्यूअर्स की भी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।